वेट फॉर सेकंड, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रहा है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ मॉर्निंग। तो कहाँ थे हम लोग? यस सर। क्लास में कहाँ थे हम लोग? Jensen field effect transistor process. So we were at construction, right? Yes sir. Yes. So we were at construction. So we have learned that how your JFET is going to construct. So first of all, we have to take N or P, whatever we want to build, whether it's N channel or P channel. Depending upon the substrate, we are doping two corners with opposite one. If you are taking N substrate, N type semiconductor, then opposite one is obviously one, only P. So P corner side में हम doping कर रहे हैं, है ना? उसके बाद internally is connected. Dotted line से we are showing that one, that connection. Okay. And this we are taking a connection through from this region. Okay. And this we are naming as gate. And this was your drain. And this is the source. ये drain हो गया और ये source terminal. Okay. Now if you want to build NP channel, then just opposite you have to do. You have to take P substrate, P type semiconductor. Okay. Then on the corner, both side opposite one. That means N type से doping करेंगे. Then again ये internally connected होगा और यहाँ से टर्मिनल आएगा, ऊपर से आएगा एक, ये ड्रेन हो गया, ये सोर्स हो गया और ये गेट. ओके, ठीक है. कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? No sir. Whenever you feel that you are not understanding, those who are regular in the class, please let me know. Okay. And please, I'll share today one PDF, that is some books. Okay. So it's related to your syllabus, and please go through that. Also, today or tomorrow, I'll give the assignment. Please, after 1 week, I will check. Okay, you have to submit on the Google Classroom. If you prepare this, then examination का prepare हो जाए. Okay, but जो basic चीजें है वो आपको इधर ही सीखने की मिलेगी. एक बार आप सीखो फिर बुक पढ़ो. बुक पढ़ना बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बुक का हैबिट डालो. कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई भी टेक्निक सीख रहे हो, कोई भी चीजें सीख रहे हो, तो बुक को मत छोड़ो, बुक को अपना दोस्त पढ़ो. ठीक है, बहुत सारा प्रॉब्लम का आंसर आपको उधर से मिलता है. तो हैबिट में डालो बुक पढ़ना. ओके,
next, that if you want to build p channel, same thing. Okay, that we have discussed. Major structure will be p type, है ना, and between we are doping with n material, and that is going to form 2 p junction. Obviously ये p है ना, इसके क्रॉस इसके साइड में एक n है, तो एक p जंक्शन यहाँ पे फॉर्म होगा, इधर भी एक p जंक्शन फॉर्म होगा, तो इसके कारण 2 p जंक्शन फॉर्म होगा। p चैनल में आपका कैरियर क्या रहेगा, होल्स रहेगा, राइट। The holes is going to be responsible for having flow of current in the system. ठीक है, ये p type that we have discussed. p type एक मटेरियल लेंगे, है ना, कॉर्नर में हम n टाइप से ग्रुपिंग करेंगे। ओके, उसका सर्किट सिंबल थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, सर आवाज क्लियर नहीं है आपका। आवाज नहीं आ रही है? नहीं सर। अभी आ रहा है? हाँ सर अभी ठीक है। थोड़ा मेरा गला चोक है आज, ठीक है, इसके लिए मे बी आपको क्लियर सुनाई नहीं पड़ रहा होगा। अच्छा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके, सो द सर्किट सिंबल इज गोइंग टू बी चेंज फॉर p चैनल। ठीक है, n चैनल में ये इधर को मार्क करेगा, टुवर्ड्स द गेट। नाउ इट्स द डायरेक्शन ऑफ योर गेट टर्मिनल इज गोइंग आउट ऑफ द जंक्शन, राइट। तो ऐसा अगर रहेगा तो वो p चैनल है। तब बुक में अगर आपको दिखता है ये चीजें, कभी कभी एक नंबर के क्वेश्चन में पूछता है, ये फिगर दे देगा, then they will ask you that which type of JFET this is. Okay, तो दो तीन चीजें याद रखने का। डायोड का सिंबल कैसा था, ऐसा, राइट। देन ट्रांजिस्टर का सिंबल कैसा था, ऐसा, है ना। JFET का सिग्नल कैसा है, जो फेट पढ़ रहे हैं उसका सिंबल कैसा है ना। ओके, दिस वाज फॉर n चैनल। ये n चैनल, p चैनल रहेगा तो डायरेक्शन बस उल्टा है, ड्रेन, सोर्स एंड गेट। ओके, now see the operation. If you see the water analogy, okay, the control mechanism of JFET, how the current is flowing and how the current is controlled. Okay, if you want to control the current, how this is happening in the system. So if you think about a source, means at your kitchen sink or any sink, okay, जहाँ से पानी आ रहा है तो कहीं से आ ही रहा होगा, तो हमारे पास सोर्स क्या रहता है, हम लोग घर में जो टैप यूज करते हैं उसका सोर्स कहाँ रहता है, छत के रूफ के ऊपर जो टैंक है वही आपका सोर्स हो गया, इसमें पानी बहुत सारा स्टोर्ड है। अभी नाउ दिस इज कनेक्टेड विद दिस, ओके, और ये टैप रहता है, नल, है ना। कितना पानी इधर गिरेगा वो कौन डिसाइड करता है, ये टैप, है ना। हाउ मच वाटर विल कम टू दिस going to be decided by the gate position. आप इसको मूव करोगे, अंदर ना एक ऐसा गोल वॉल जैसा होता है, बेरिंग टाइप का, उसको क्लोज करते जाते हैं। डिपेंड करता है वॉल बहुत तरह का। ओके, तो ये क्या कर देगा, क्लोज कर दे, जितना घुमाओगे और क्लोज होगा। ओके, तो ये आप कंट्रोल कर सकते हो। तो सेम चीज अब सोचो,
junction field effect transistor. So we have the source, we have the drain, and we have the gate, right? ऐसा था. और स्ट्रक्चर को याद करो. स्ट्रक्चर कैसा था? ये हो गया आपका सोर्स, ये है ड्रेन, और ये था गेट, राइट? सोर्स मतलब क्या? ये n पूरा n टाइप का सबस्ट्रेट है, तो यू नो दैट देयर इज ए free number of electrons are available. Okay. Now if we bias this, means अगर ड्रेन टू सोर्स के बीच में आप कुछ वोल्टेज देते हो तो आराम से ये करंट फ्लो हो जाए. Okay. अगर आप इधर वोल्टेज दे देते हो, आगे जाके देखेंगे. Okay. Now if we supply some potential, तो क्या होगा? Because this is n टाइप, तो आराम से करंट फ्लो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रेजिस्टेंस, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी. बट नाउ बिकॉज वी हैव वन टर्मिनल आल्सो, है ना? ये जो गेट है, गेट और सोर्स के बीच का अगर वोल्टेज, अगर मतलब आप इस पे सप्लाई कुछ दे देते हो तो क्या होगा? बिकॉज दिस इज पी टाइप एंड दिस इज एन टाइप, तो यहाँ पे एक डिप्लेशन लेयर फॉर्म हुआ. ओके, तो समहाउ अगर ये जो डिप्लेशन लेयर है, ओके, ये बढ़ते बढ़ते, ये दोनों बढ़ते बढ़ते ऐसे पूरा इधर से जो एरिया से इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो कर रहा था उसको ब्लॉक कर सकता है. अगर ये ड्रेन, सॉरी ये गेट एंड सोर्स रिवर्स बायस हो जाए, मतलब ये पीएन जंक्शन रिवर्स बायस में आ जाए. ओके, देन वी कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ current. Okay, that is why we are talking about this gate, है ना? ये जो गेट है ना, ये इसका पूरा फ्लो ऑफ करंट के मैकेनिज्म को कंट्रोल कर सकता है, ये टर्मिनल. ओके, सेम लाइक वो वाटर एनालॉजी में जो हो रहा है. ओके, सर लिंक से अटेंडेंस बनाना है. हाँ, लिंक में एक्टिव कर दे. एक स्क्रीनशॉट भी ले लो अभी तुरंत. ओके, एंड देन I'll active the link in between, इन आपको बना लेना. Now the operation, अभी ये जो मैं बोला उसमें किसी को कोई दिक्कत है? नो सर. It's very simple. Okay. Now there is a, जैसे आप उसको बायसिंग दे दिए, मतलब पोटेंशियल दे दिए, तो वी हैव नाउ कंडीशन कि because we have three terminals, so as we know gate terminal is very very important. Okay, because it's going to control the flow of electrons within the JFET. Okay, so when we have three operating conditions for the JFET. Okay, first one is what? When VGS is 0. VGS is 0. That means this condition. When VGS is 0, this we haven't apply anything. Okay, कोई पोटेंशियल नहीं है, इसको ये दोनों के बीच पोटेंशियल 0. ओके, तो अगर उसके बाद आप VDS अप्लाई करते हो, इट्स वेरी सिंपल. ओके, करंट विल फ्लो इजीली फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स. इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू फ्लो फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन. ऑब्वियसली आप ऐसे पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो क्या होगा? यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, एन टाइप मटेरियल है. ओके, तो क्या होगा? ये पॉजिटिव पोटेंशियल से अटैच्ड है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है इधर आराम से इस टर्मिनल की ओर खींचा चला जाएगा. तो इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर फ्लो कर रहा है तो करंट ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर लेगा.
Okay, so current will flow from drain to source. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. When VGS is 0, that means voltage drop or the voltage between gate to source is 0, then your depletion region is initially कैसा था depletion region? जब कोई biasing नहीं था, ध्यान देना, जब कोई biasing नहीं था तो कैसा था depletion region? ये ऐसा था. बट जब आप पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो तो कैसा एक शेप आ रहा है? है ना, थोड़ा बढ़ रहा है. ओके, जो डिप्लेशन लेयर है वो थोड़ा बढ़ रहा है. ठीक है, क्यों? कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? ये N है और ये P है, तो डिप्लेशन लेयर कब बढ़ता है बाबू? जो N टर्मिनल है वो किससे कनेक्टेड है? देखो, पॉजिटिव से, और ये पोटेंशियल 0 पे है. ओके, तो ये जंक्शन क्या है? फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है? ये जो जंक्शन यहाँ पे फॉर्म हुआ, पीएन जंक्शन, ये डायोड रिवर्स बायस है कि फॉरवर्ड बायस है? बोलो, आवाज नहीं आ रही? फॉरवर्ड बायस है. फॉरवर्ड बायस होगा जी. कैसे फॉरवर्ड बायस होगा? एक एन टाइप है, इसके साथ बाजू में पी टाइप लगा हुआ है, एक जंक्शन फॉर्म हुआ है यहाँ पे. हाँ, अभी ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है. एन टाइप इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव एंड दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू दिस इज कनेक्टेड विद सम पोटेंशियल, सपोज 0 पे ही. तो अभी कौन सा बायसिंग में है ये? अरे अगर एन टाइप पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो कौन सा बायसिंग होता था? रिवर्स. रिवर्स बायस होगा ना जी. क्या सीखे इतने दिन में फिर? If your N type is connected with the positive terminal and P type is connected with the negative terminal, then obviously this biasing is what? Reverse biasing. Here, with respect to, अगर ये दोनों पॉजिटिव है, सपोज मान लेते हैं ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से कनेक्टेड है. ओके, but with respect to this potential, this is very less. ओके, कोई एक टर्मिनल अगर इसका अपोजिट से है मतलब रिवर्स बायस हो गया, तो ये टोटल रिवर्स बायस में आ गया है ना. तो डिपेंडिंग अपॉन द try to understand. Okay, depending upon this potential, ये VDS और VDD जितना हम इंक्रीज करते जाएंगे उतना ये डिप्लेशन लेयर बढ़ते जाए. ओके, दोनों साइड. एक समय ऐसा आएगा, ओके, कि ये चैनल बचेगा ही नहीं जहां से इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो करता है. गॉट द पॉइंट? मींस
दिस चैनल इज गोइंग टू बी वैनिश, रेजिस्टेंस इस एरिया का बहुत बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं पास हो पाएंगे। क्लियर है? दैट वोल्टेज इज कॉल्ड एज pinch of voltage, means channel is going to be pinched off. Okay, ठीक है? Yes, sir. कोई दिक्कत? Any problem? No. See, सर अटेंडेंस लिंक एक्टिव नहीं है। ओ अटेंडेंस बना के भागोगे है ना? हाँ जी, ये करोगे? कर देंगे active, रुक जाओ। See, from the beginning what we have started, we have seen the construction. अभी construction हो गया, then what we are doing, we are seeing the characteristics or the mode of operation. So obviously we have three conditions when this terminal is having some value or some voltages, and this terminal इसके बीच की वैल्यू अगर जीरो है, that means VGS is zero and VDS is something having positive value. Okay, 1 2 3 लाइक ऐसा वोल्टेज आप अप्लाई करते हो तो क्या होता है? ओके, यही चीजें देख रहे हैं। तो ये पूरा n है, सपोज पहले आप ये वाला कॉर्नर वाला कॉन्सेप्ट अभी हटा दो, पहले n है, सिर्फ n मतलब सिर्फ n टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, अभी इसके क्रॉस आप कुछ अप्लाई करते तो क्या होगा बताओ? क्या होगा जी? बोला करो, नहीं बोलोगे तो कैसे होगा? व्हाट विल हैपन? अरे सिंपल सेमीकंडक्टर है, एन टाइप है ऐसा कोई, इधर आप ऐसा वोल्टेज अप्लाई करें तो अभी क्या होगा? क्या होगा? बोल ही नहीं रहे हो। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कंडक्शन बैंड से रिलेटेड। क्या क्या बोलो? तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, मतलब होल्स इलेक्ट्रॉन। एन टाइप मींस व्हाट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर ज्यादा होगा, राइट? अभी इलेक्ट्रॉन्स है तो आराम से इसमें मूव कर सकता है। आप एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई की तो ऑब्वियसली करंट फ्लो होगा। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई कर दिए तो करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ खींच के आएगा कि नहीं आएगा? एंड दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी कंटिन्यू। आप घर में एक तार लेके आते हो, उधर वोल्टेज अप्लाई करते हो तो करंट फ्लो करता है कि नहीं करता है? वो कंडक्टर है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है पहले से। अरे हाँ कि ना? क्या जी 30 स्टूडेंट है और 30 में से एक भी हाँ हूं कुछ नहीं? हाँ,
ऐसे तो नहीं होगा, छोड़ दो, हम बंद कर देते। क्या नाम है इसका? यार मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? ये सर आ रहा है। तो कुछ पूछ रहे तो जवाब देने आता है कि नहीं आता है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलोगे कि सारा लॉगिन करके सब घूम रहे उधर उधर। आलोक कुमार प्रेजेंट है क्लास में? आलोक कुमार, अंजलि कुमारी, यस सर। अंकित कुमार, यस सर। चेतन, यस सर। फरहान। Yes, sir. Why you are not speaking, everyone? Tell me. सॉरी सर, अब नहीं होगा गलती। It's not about galti, means you are not concentrating in the class or you are not getting the point. दो ही चीज हो सकता है ना। हर्ष द्विवेदी, इसिका, Yes, sir. इसिका, ये भी गायब। Yes, sir. रिंकू कुमारी, गायब। राजेश Sir, मुर्मू, you are not audible properly. Yes, sir. साधना कुमारी, Sir, your voice is not coming clear. तुम कहाँ घूम रहा है पहले ये बताओ तो। तुम बाहर है इसीलिए नहीं सुनाई दे रहा है। सबको सुनाई दे रहा है, तुम्ही को नहीं सुनाई दे रहा है जी? विक्रांत, Yes, sir. Yes, sir. सी मेक योर क्लास इंटरेक्टिव, तब मजा आएगा। अदरवाइज राम कथा खत्म, कहानी खत्म। If I am asking something, just try to answer. Whether it's right or wrong, I am not focusing on. आप अवेयर हो, देख रहे हो, कर रहे हो कि नहीं, that is the concern. सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि अगर कोई एन टाइप मटेरियल है, आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा? तो फट से ब्रेन काम करना चाहिए कि एन टाइप मटेरियल मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें बहुत ज्यादा है। अगर हम बाहर से पोटेंशियल करेंगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, उसके कारण करंट फ्लो हो जाएगा उसमें। दैट्स इट। है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये थोड़ी सी जो फिजिक्स है वो तो आनी चाहिए ना सबको। अभी मान लेते इसमें पी डोप कर दिए, तब ये
इसका सब कुछ चेंज होने वाला है अभी, जो हम पीएन जंक्शन में पढ़े थे हम लोग, है ना। यहाँ पे एक डिप्लेशन लेयर, एक ऐसा रीजन फॉर्म हो जाएगा जहाँ पे कोई भी मूवेबल चार्ज नहीं बचेगा, राइट। दैट इज वी आर कॉलिंग एज अ डिप्लेशन लेयर। मीन्स डिप्लेशन मीन्स depletion of what? Depletion of free charge carrier. Okay? तो अब चैलेंज आ जाएगा। अब अगर आप पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो ये तुरंत फ्लो नहीं करेगा जब तक ये ना हट जाए। तो अगर ये फॉरवर्ड बायस है तो सर्टेन वोल्टेज, सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज 0.7 वोल्ट ये वैनिश हो जाता है, राइट। अगर ये रिवर्स बायस हो गया तो ये डिप्लेशन लेयर और बढ़ते जाएगा। यही था। तो सेम केस यहाँ पे हो रहा है, जब आप ये रिवर्स बायस में जा रहा है तो ये डिप्लेशन लेयर धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसको इंक्रीज करोगे वैसे वैसे ये बढ़ते जाएगा। एक समय आएगा ये जो दो डिप्लेशन लेयर पूरा आपस में ऐसे सट जाएंगे। तो अभी तो ये बचा नहीं स्पेस इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के लिए, राइट। ऑब्वियसली देयर इज अ पिंच ऑफ होल, वहां से इलेक्ट्रॉन आराम से पास हो रहा है। दैट इज नॉट our concern. Our concern is to look the channel is going to vanish totally, okay, after increasing the voltage across VDS. पहले आप 1 वोल्ट अप्लाई करोगे फिर देखोगे आराम से करंट फ्लो कर रहा है, बिकॉज वी आर डूइंग स्टडी मींस कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। तो हम देखते पहले 1 वोल्ट डाल के फिर 2 वोल्ट बढ़ाए, फिर 3 वोल्ट, फिर 4 वोल्ट, ऐसे करके बढ़ा रहे, इंक्रीज कर रहे। एक सर्टेन वोल्टेज पे ये चैनल पूरा वैनिश हो जाएगा, ओके। बट अगर हमको इसको काम में लेना रहेगा तो ऑब्वियसली 1 से या 2-3 के बीच में रखेंगे तो आराम से करंट फ्लो होगा, कोई काम आराम से हो सकता है। Got the point? But we are doing the case study kind of thing that whenever we are increasing तो क्या होगा, ओके। तो ये चीजें एग्जाम में लिखना होता है, ठीक है। सपोज पूछ दिया कि ड्रॉ द डायग्राम एंड एक्सप्लेन, तो देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, है ना। ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कैसे ऑपरेशन में क्या क्या केस बन सकता है। तो पहला, व्हेन VGS 0 एंड IDS इंक्रीज कर रहा है सम पॉजिटिव वैल्यू में तो क्या होगा। व्हेन VGS इज लेस एंड VDS इज एट पॉजिटिव वैल्यू, अगर VGS को बहुत 0 से भी कम कर दे तो क्या होगा, ओके। तो अभी एक केस देखिए जब VGS इज 0। अब देखते हैं VGS is that condition that we are talking about is called as pinch off, okay. This is very very important terminology, pinched off। अब देख रहे हो ये धीरे धीरे सट गया है, जब आप VDS को बढ़ाते बढ़ाते कैसे वोल्टेज पे लेके चले जाते हो, तब ये जब आपका चैनल पूरा वैनिश हो जाता है, ओके, उस वोल्टेज को क्या बोलेंगे, पिंच ऑफ वोल्टेज, और इसको डिनोट कैसे करेंगे, VP। ये केस था, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो व्हेन VGS इज 0 एंड VDS इंक्रीज हो के एक सर्टेन वोल्टेज पे चला गया है, दैट इज कॉल्ड एज पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे चैनल वैनिश हो जाएगा। क्लियर है? Yes. Now, and this is the characteristics curve,
किसके किसके बीच में? VDS वर्सेस ID. ओके, VDS वर्सेस ID, ठीक है ना? आप पीछे का डायग्राम देखो, समझो। We are talking about initially what I have told in any whatever you are reading in transistor. Okay, दो चीज तीन चीज सीखने का है. पहला कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड देन कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. तो यहाँ ऑब्वियसली जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो कोई वोल्टेज वर्सेस करंट का हम प्लॉट देखेंगे. ओके, वोल्टेज आप दे रहे हो, ये चेंज कर रहे हो, तो कैसे करंट का बिहेवियर. क्लियर? तो यहाँ पे आप क्या वोल्टेज चेंज कर रहे हो? VDS बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली ये ID बढ़ रहा है, ये ID फ्लो हो रहा है. ओके, ड्रेन करंट फ्लो हो रहा है ड्यू टू दिस. ये हटा लोगे तो कुछ है नहीं सोर्स, तो कहां से करंट फ्लो होगा? ओके, सो वी आर प्लॉटिंग दिस VDS versus ID. Okay, this one. Okay. So it is going to look like this: VDS versus ID. Initially